Naresh, Ankit. I believe it's you, Ankit, today, not Shivangi. Ganesh, Kailash. Namaste, everybody. Amaya. Wonderful to see. Naren, you are one dedicated guy, Naren. It's so wonderful to see you every HM. Vivek, Suprabhat, Jyoti, good to see you. Anjali, Shripal, wow. Satyajit, and so many others. I'm sorry, I'm just moving fast. Welcome to Happy Minds. It's wonderful to see all of you. I was last week. I was in Maldives, and from वहाँ से हमने session लिया, and it was another first of my life that you taking. And मैंने लिखा post में कि शायद ही किसी ने ऐसा किया होगा कि Maldives में आके वहाँ से session लिया. It was a beautiful setting, and those of you who were there last week with me, you must have seen the setting behind. It was the vast ocean behind me. पूरा एकदम ऐसा एक अलग ही experience था कि एक होता ना कि abundance है, infinity है, कि पूरा समुद्र है, अंत तक आपको पानी पानी दिख रहा है. मतलब you cannot see beyond that. And of course the resort was awesome. एक अलग experience हुआ. Great, lovely, love to see all of you. Great. Oh, Ankit says we are together. I believe you. Those who have joined in for the first time to Happy Minds, welcome to Happy Minds. And this is our family of growth-oriented, dedicated, die-hard fans who really want to, fans of their own lives, fans of their own growth. They really want to make their lives better. So they keep on coming here week after week, month after month, year after year. They have been here. So जो लोग पहली बार आए हैं, you have come to a great place. You have come to the right place, I believe. And ऐसा मेरा विश्वास है कि जब ये HM खत्म होगा तो I'm sure you'll have some great takeaways to go back with, because आज का session is on communication, and which I started last week. So I'll share with you the four ways by which we communicate. I'm going to share with you the three aspects of communication, the five levels of listening. देखते हैं कितना time है आज और ये सब points मैं cover कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. So I was just thinking, drafting the entire concept of communication. So actually ये concept of communication जब मैं draft कर रहा था कल रात को कि आपसे क्या share करूं, तो मुझे याद आए वो दिन way back in 2002-3 से लेके around 2007-8 तक, आज से 15-20 साल पहले, I would take a 3-day workshop on communication for a lot of corporates. So जितने भी पुणे के आसपास corporates थे, you whether it be the TCS, whether it be Sybase and all these companies which were IT companies, Infosys, तो वहां पर जाके मैं ये 3 दिन के workshops लेता था. तो उसको मैंने concise किया, and ऐसी एक मेरी कोशिश रहेगी कि I can share with you as much as possible today in this Happy Minds. So समझते हैं, देखते हैं क्या हो पाएगा, कितना हो पाएगा. No, Mangal says we miss you and we love you. We love you too, Mangal, and I'm sure Sia is doing well. Your daughter, my regards to her. You are one dedicated Happy Minds fan. It's nice to see that from Saat Samundar Par se US se koi sunta hai on a dedicated basis. Chali, great. Those who have joined me for the first time, you can just type in the city you're from, so I'll come to know you're from which city, and you can just type in the first and the city you're from, to mujhe malum pad jayega. So normally what we do is we start with some success stories. We start with some sharing. Of course, meditation is there, and meditation के बाद हम लोग success stories से share करते हैं and feedback से share करते हैं, and then we go on to what I have to share. So आज के कुछ sharings हैं, and some lovely sharings have come in. I was talking about Mansi, Mansi Munoj. She was talking to me and she says, "Sir, I have heard you in the weirdest of places." Means I was traveling by bus from here to from Pune to Ahmedabad, and मैंने आपको सुबह बस में सुना. I said, "Wow, किस level की dedication है." I've got feedbacks from people who kind of, they're jogging in the morning and then they have it in their headphones and they listen to HMs. I've heard people driving to work and listening to me. तो कोई cycling करते हुए सुनता है, कोई jogging करते हुए सुनता है, कोई driving करते हुए सुनता है. So I thank you so much for all the love, for all the affection and all the kind of encouragement you give by your presence. So जब ये कहानियां सुनता हूँ तो मन करता है, वाह, there is so much more to do, and so much willingness comes from inside. I think everybody needs a dose of motivation. So my motivation is the feedbacks which I keep on getting from all of you.
Hmm. Chalo, great. I'll just share with you a few sharings and a few feedbacks which we got last week. The first one is from Rajesh Kulkarni from Navi Mumbai, and he says, "Sir, HMs are a regular dose of energy for me, and I watch your sessions on YouTube. My friend came from US after many years, and he said I have become more positive in life, and I felt happy listening to that comment. This is all because of regularly listening to Happy Minds for last 2 years. Arey wow, that's nice, Rajesh, and happy that you have been able to connect. And that's why we have got this YouTube back live with us the last few months, where we had stopped our live on YouTube. We would take it away, but then we said, a lot of people said, नहीं sir, time नहीं होता सुबह सुबह, कभी हम लोग travel कर रहे होते हैं, कभी हम लोग busy होते हैं. Can you have it on YouTube? So last few months we have started streaming it on YouTube, and we keep the recording there. तो जिनका मिस हो जाता है वो लोग YouTube में देख लेते हैं. So all YouTube fans, love you for watching, and love you for making your life better. तो जब आपके फ्रेंड ने आपको बोला होगा कि you have become more positive, I'm sure एक होता है, you have been acknowledged for what you have become. And it's not only the Happy Minds, I believe आपने और बहुत कुछ किया होगा जिसकी वजह से you have become more positive. But staying positive is a must. I wouldn't, मैं क्या बोलूं इसमें, और it's a must. Another sharing is from Sarvesh Mahajan from Nagpur, and he says, "MG sir, I have finally left my job." And ये बड़ा interesting सा sharing लगा मुझे. So he says, "I've left my job. Finally, I've left my job, and I've joined the club of entrepreneurs." बहुत हिम्मत लगी सर, बहुत सोचा. Last 5 years I've been thinking about, but नहीं कर पाया. Last January, जो ये महीना गया, last January मैंने decide कर लिया, और इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है. I was never made a partner यार, मेरा क्या हाथ है इसमें. आपको मैंने सुना था पुणे में 6 साल पहले in a book launch, and आपने शेयर किया था entrepreneurship क्या है, and वो मेरे, that was the beginning. It's great to be an entrepreneur, आपकी पंच लाइन है, और वो मैं लाइन लेके वापस गया, और फिर काफी वीडियोस देखे आपके. आज ये कदम ले पाया आपकी वजह से. थैंक यू. अरे वाह, so nice, Sarvesh, and all the very best of to step into this world of entrepreneurship. ये जो आपने कहा ना कि मैंने डिसाइड कर लिया in January to become an entrepreneur, शायद यहाँ पर मैं हल्का सा करेक्ट करूंगा. डिसीजन बहुत पहले हो जाता है, हम उसका एक्शन जो है ना वो काफी बात करते हैं या फिर एक्शन नहीं करते. तो there's a difference between decision and there is something called action. तो बहुत से लोग डिसाइड तो करते हैं लेकिन एक्ट नहीं करते. And I'm happy to see that you have decided and you have acted. Maybe this decision happened 6 साल पहले जब आपने मुझे सुना, तो शायद उस समय आपने डिसाइड कर लिया कि यार बनेंगे, लेकिन वो एक्शन होते होते 6 साल लग गए. And it's okay. It's okay. Some people take less time, some people take more time. But I want you to understand, all of you, that decisions and actions, ये दो अलग दुनिया है. So many people, they don't even decide. They are in that state of confusion. वो विडम्बना में होते हैं, करूं कि नहीं करूं. और कुछ लोग जो है डिसाइड कर लेते हैं लेकिन डिसीजंस के बाद एक्शन नहीं लेते. तो मेरा सिर्फ ये कहना रहेगा, आज का सब्जेक्ट डिसीजंस पे नहीं है, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू शेयर दिस वेरी सिंपल पॉइंट विद ऑल ऑफ यू, दैट वंस यू डिसाइड एंड देन यू डोंट एक्ट, जब आप ऐसा छोड़ देते हो डिसीजंस को बिना एक्शन के, तो डिसीजंस ऑर्फन हो जाते हैं. और जब वो ऑर्फन हो जाते हैं तो फिर डिसीजंस जो है ना, उनकी ताकत कम हो जाती है. और वही उस जो डिसीजन आपने लिया है वो कमजोर नहीं होता, बट आने वाले और डिसीजंस लेने की ताकत भी कमजोर हो जाती है. सो बहुत से लोग जो है उनके मन में बहुत सारे डिसीजंस लिए हुए हैं, बहुत सारे अनाथ डिसीजंस घूम रहे हैं, ऑर्फन घूम रहे हैं, और उनको उन्होंने एक्शंस के साथ सहारा नहीं दिया. एज अ रिजल्ट वो डिसीजंस कमजोर 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 होते होते कुछ तो मर गए, कुछ तो बेचारे आईसीयू में है, कुछ आईसीयू में जाने की कगार पे है, लेकिन उसको एक्शंस का सहारा नहीं मिला. और जब एक्शंस का सहारा नहीं मिलता और डिसीजंस पूरे नहीं होते, तो हमें आगे और डिसीजंस लेने की ताकत जो है ना, वो भी हमारी कमजोर हो जाती है. तो कम डिसीजंस लो चलेगा, लेकिन जो डिसीजंस लिए उसको अमल करो, उसको एक्शन में तब्दील करो. दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट.
क्योंकि एक्शंस में तब्दील करके समझ में आएगा ना कि वो डिसीजन जो है वो उसमें और क्या करा जाए, वो डिसीजन मुझे कहाँ ले जा रहा है। मन में डिसीजन रख के तो कुछ हुआ नहीं ना। And all of you have been to college, right? You decided on saying something to the person whom you liked in the college. और आपने डिसाइड किया लेकिन आपने एक्शन नहीं लिया, और देखो वो कहाँ निकल गई किसी और के साथ। अगर आपने एक्शन लिया होता, आपने कुछ बोल दिया होता उस समय, तो फिर शायद आप दोनों मिलकर साथ आ जाए, देख रहे होते। Am I right or not? So a lot of you decided, or I'm going to propose to this girl, I'm going to talk to this girl, और वो डिसीजन रह गया, एक्शन में तब्दील नहीं हुआ। And today you are watching alone Happy Minds there. Hmm? So जो भी डिसीजन लिया, वो डिसीजन को एक्शन में तब्दील करो। तो रात को आप डिसाइड करते हो कि सुबह उठूंगा यार, एक्सरसाइज करूंगा। आप सोचते हो सुबह एचएम अटेंड करूंगा। आप सोचते हो कि कन्वर्ट दैट इनटू एक्शन, कन्वर्ट दैट इनटू एक्शन। गणेश कह रहा अभी समझ में आया सर। क्या सर पहले बताना था। तेज, देखो जब जागो तब सवेरा, अभी भी देर नहीं हुई है तेज। हाँ। Okay, not about the college thing, but there are so many decisions pending. So, Sarvesh, glad for you that you have joined the club of entrepreneurs, and मैं तो थोड़ा सा एक मेरा योगदान रहा तुम्हें कि मे बी बिकॉज ऑफ मी जो आपके मन में विचार था वो और इंस्टिगेट हो गया, मे बी बिकॉज ऑफ मी वो विचार में और आग लग गई, लेकिन किया तो तुम नहीं है, तो सारी बधाई के पात्र तुम ही हो। सो ऑल द बेस्ट टू यू, एंड जस्ट वांट टू शेयर दिस एंड ऑल ऑफ यू लिसनिंग टू मी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सुनते हो और सुनने के साथ साथ यू डोंट अप्लाई योर ओन माइंड टू इट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी से कि आप अपनी जॉब छोड़िए और आप एंटरप्रेन्योर बनिए, राइट? लेकिन अगर आपके मन में है कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेस में आना है, तो उसके लिए तैयारी करिए। ऐसे नहीं कि सडनली किसी की बात सुनी, आपने मुझे सुना या आपने ये कहानी सुनी और आपने कल जाके बोल दिया ऑफिस में कि बस आता, बस सर अभी हो गया, अभी मैं अपना काम करूंगा, और ना काम का आता पता है, ना एबीसीडी मालूम है, ना तुम्हारा फाइनेंशियल सिक्योर है, एंड यू जस्ट जंप इनटू इट बिकॉज आपने किसी को सुन लिया कहते हुए कि एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी चीज है या बिजनेस करना चाहिए, तो वो गलत हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जब आप बिजनेस में जंप कर रहे हैं तो यू शुड इंश्योर कि अगले कुछ महीने आपके मन में ये बात होनी चाहिए कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आगे का सफर आसान नहीं है, ये एक मुश्किल सफर है जिसमें आप कदम रख रहे हैं। क्योंकि आसान होता तो फिर सभी बने होते ना। ये आसान सफर नहीं है एक एंटरप्रेन्योर बन के जिंदगी जीना। तो अगले कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल आपको मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। तो क्या उसकी मेंटल तैयारी है क्या? शायद आप अगले कुछ साल पैसा नहीं कमाएंगे, और नहीं कमाते हैं एंटरप्रेन्योर्स। आप सिर्फ सर्वाइव करने के उसमें लगे रहते हो। सो यू डोंट मेक मनी फ्रॉम मंथ वन। तो आपने कुछ महीनों का पैसा इकट्ठा करके रखा नहीं रखा है घर में, जिससे आपका घर का फाइनेंशियल स्टेटस ना हिले। क्योंकि बिजनेस में तो पैर जमा रहे हैं और घर भी के पैर भी उखड़ गए तो बड़ा मुश्किल हो जाती है। एंड दैट्स व्हाट मेनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी चाहिए, बट सिंस टुडे इज नॉट सब्जेक्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस विद यू कि आप कोई कहानी सुन के ऐसा भावुक मत हो जाना और कुछ डिसीजन बिना सोचे समझे ना लेना। तो डिसीजंस लेने से पहले बहुत सोच विचार करना चाहिए, राइट? और जब डिसीजन ले लिया तो सोच विचार बंद कर देना चाहिए और सिर्फ एक्शन करना चाहिए। ये सिंपल प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग। सो ऑल द बेस्ट टू यू सर्वेश। एंड आज की लास्ट शेयरिंग इज फ्रॉम Manvinder Sharma from Delhi, and he says, "Sir, I listen to Happy Minds whenever I can. Thank you for giving knowledge every week for our growth." Oh, thank you so much, Manvinder, for acknowledging. "Sir, I like what I hear, but I forget after some time. How do I remember all that which you say? And this is for everything, whether it be books padhta hu, video sunta hu, I watch, I forget. What do I do? Is my memory weak?" And he says, ye likhte hain Manvit, "I'm 40 years, sir. Is it with my age that memory becomes weak? I'm worried. Please guide." uh, ये आज मेमोरी का भी वर्कशॉप नहीं है, बट जस्ट बिकॉज यू हैव शेयर्ड दिस मानवेन, व्हेन आई वाज रीडिंग दिस तो मैं बड़ा स्माइल किया, तो मैंने कहा ये शेयर करूंगा सबके साथ कि ही एंड स्पेशली द लास्ट पार्ट, ही सेज, "सर, आई एम 40 इयर्स ऑफ एज एंड ये ऐसा तो नहीं कि एज के साथ जो है ये मेमोरी कमजोर हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। योर मेमोरी कैन बी एज शार्प as it was
as long as you live, इसमें of course if there is some degeneration, some medical challenges which happen, otherwise memory serves us very well, ऐसा मेरी समझ बोलती है. फर्क इतना है, जैसे हम we age and we move further in our lives, फर्क क्या होता है कि हम कुछ चीजें भूलते हैं, तो हम जो हम भूलते हैं उनको हम एज पे डाल देते हैं. अरे यार, उम्र हो गई है, अरे यार 40 के हो गए, यार 50 के हो गए, अभी तो भूलना भी शुरू हो गया है. ऐसा हम उस पर डाल देते, जबकि बात एज की नहीं थी, बात हमारे लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड की थी. तो आप देखो ना, इफ यू हैव चिल्ड्रन एट होम, अगर आपके घर में बच्चे हैं जो दोज हु आर 5 इयर्स, 7 इयर्स, 10 इयर्स ऑफ एज, और वो स्कूल जाते हैं, और अगर बच्चे बड़े हो गए तो आपके पास ये एक्सपीरियंस रहा होगा, तो आप देखो कि अक्सर ऑन एन एवरेज every day the child forgets something or the other. He forgets something or the other in school. तो कभी वो अपना वो पेंसिल बॉक्स भुलाएगा, कभी टिफिन भुलाएगा, कभी वाटर बॉटल भुलाएगा, कभी इरेजर्स भुलाएगा, कुछ ना कुछ, कभी वो नोटबुक भुलाएगा. तो कुछ ना कुछ भूलते रहता है वो बच्चा. और आप अगर देखो 40-45 साल के लोगों को, तो वो भी कभी ना कभी कुछ भूल आते हैं. कभी वो चार्जिंग वायर भुलाएंगे, कभी वो लैपटॉप कहीं रखा है तो ऑफिस में वो घर लाना भूल जाएंगे, कभी घर से कुछ सामान ऑफिस ले आना भूल जाएंगे. तो ये बच्चा भी जो है 7-8 साल का, ये भी भूल रहा है. ये 10-12 साल का बच्चा, ही इज ऑल्सो फॉरगेटिंग. दिस 45-50 ईयर सीजन मैन, ये भी कुछ भूल रहा है. लेकिन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो जो 8 या 10 साल का बच्चा जो है, वो अगले दिन स्कूल में जाके अपने दोस्त के कंधे पे हाथ रख के, जो वो भी 10 साल का जो बच्चा है, वो दूसरे 10 साल के बच्चे के कंधे पे हाथ रख के ये नहीं बोलता कि अरे यार 10 साल का हो गया हूं, मेमोरी कमजोर हो गई. वो ये नहीं बोलता. बस ये 40 साल का इंसान किसी और 40 साल के इंसान से मिलता है एक पार्टी में, कहता है यार अपन 40 के हो गए, यार मेमोरी जो है ना ये कमजोर होती जा रही. बस यही फर्क है. भूलता बच्चा भी है, भूलते बड़े भी हैं. लेकिन फर्क ये है कि बच्चा कहता है यार ठीक है, इट्स ओके, भूल गया भूल गया. बड़ा जो है उसको अपनी उम्र से लिंक करता है. सो नथिंग टू वरी अबाउट, मानवीन, एंड आई फील दैट ये सबके साथ होता है. बट व्हेन इट कम्स टू लिसनिंग, व्हेन इट कम्स टू वॉचिंग अ वीडियो, अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट अगर आपने इसकी रिटेंशन बढ़ानी है, अगर आपने ये अपनी काबिलियत को बढ़ाना है कि आई कैन रिकॉल अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो सी इफ यू कैन मेक नोट्स. आई ऑलवेज वुड से मेक नोट्स, राइट? आप जब किताब पढ़ते हो, बुक पढ़ते हो, ऑलवेज सिट. इफ इट्स अ कैजुअल रीडिंग तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर कोई ऐसी नॉवल पढ़ रहे हो, कोई ऐसी टाइम पास बुक पढ़ रहे हो, इट्स ओके. बट इफ यू रीडिंग a business book, or if you're reading a life-based book, तो always sit with a highlighter. तो उस पेज को पढ़ते पढ़ते कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको लगेगा आई शुड हाईलाइट कर दो. डोंट वरी अबाउट इट कि मुझे याद है कि नहीं, जस्ट हाईलाइट कर दो. और ऐसे करके बुक पूरी पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो आपने हाईलाइट कर दिया. इसी तरह आप वीडियो देख रहे हो, मेरा एचएम देख रहे हो, तो मैं बहुत बातें करूंगा उसमें, क्योंकि मुझे आई हैव टू टॉक फॉर 1 hour, सो आई हैव सो मेनी थिंग्स आई विल टॉक अबाउट. तो उसमें से आपको कुछ जो आप पकड़ पा रहे हो, जो आपको अच्छा लग रहा है उस समय, आपने लिख लिया. डोंट वरी अबाउट याद रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन आपने वो पॉइंट लिख लिया. तो आपने बुक को हाईलाइट कर लिया, आपने वीडियो को सुना, आपने कुछ पॉइंट्स लिख लिए. अब ये मेहनत करनी पड़े. हम ये मेहनत नहीं करते, हम ये हाईलाइट नहीं करते, हम ये पॉइंट्स नहीं लिखते. फिर क्या होता है, हमें हमें उस समय लगता है याद है, हमें उस समय लगता है हाँ कनेक्ट हो गया, लेकिन उसके बाद हजार चीज मन में और आती हैं, और ये कनेक्ट कहाँ डिस्कनेक्ट हो जाता है मालूम नहीं पड़ता. So I suggest all of you, when you listen to Happy Mind, so many of you come week after week after week. See if you can, on your mobile, you can make some notes. Okay, Happy Minds number 1131. I picked up 5 points. Lick those. And when you write it down, now it's there in black and white, it is safe. And जब HM खत्म हो जाए, उसके बाद दिन भर में कभी भी, उसी दिन 24 घंटे से पहले, आप उसको एक बार वापस पढ़ लो उन पॉइंटर्स को. And it will just take 2 or 3 minutes. मेरा बोलना 1 घंटा, आपका उस बोलने में से लिखना कुछ 5-10 मिनट आपने लिखा, तो आपने 10 मिनट वो टाइम स्पेंड इन्वेस्ट किया और आपने वो लिखा, और आपका शाम को सोने से पहले विदिन 24 आवर्स आपने उसको रिवाइज किया इन 2-3 मिनट्स टाइम. दिस इज द कॉम्बिनेशन व्हिच यू नीड टू हैव, एंड यू विल सी दैट योर रिटेंटिव पावर, उसको रिटेन करने की ताकत, क्षमता, विल गो बियॉन्ड 50-60%. क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया, सो बाय टुमारो मॉर्निंग, जो मैं भी बोल रहा हूं आपसे,
बाय टुमारो मॉर्निंग 93% ऐसा रिसर्च बोलती है, 93% विल बी वॉश्ड आउट। सुबह फ्लश के साथ जो मैंने बोला वो निकल जाएगा। फिर मैं दोबारा कभी बोलूंगा उसको 1 साल बाद, 6 महीने बाद या 3 महीने बाद, तो होगा, हाँ हाँ सुना हुआ लग रहा है, राइट? अगर आपको वो भी कनेक्ट हुआ तो। सो 93-95% इज लॉस्ट विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स। सो उसको कैप्चर करना बड़ा जरूरी है। सो नथिंग टू वरी अबाउट योर मेमोरी, मेमोरी इज फैंटास्टिक। चलिए, ओके। हाँ जी, मेरे साथ हो? Fortunately, we are together for happiness. Great. चलो, let's take on for today's session. तो आज जो है कम्युनिकेशन के ऊपर हल्का सा चर्चा करते हैं। Let's see if we can all connect together on this very beautiful subject of communication. Because ये communication जो है ना, this is the basis for all relationships. जो भी हमारे रिश्ते हैं, जो भी हमारे हम लोगों से कनेक्ट करते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान से कैसे रिलेट करता है? इट इज ओनली थ्रू कम्युनिकेशन। जैसे एक मशीन दूसरी मशीन से रिलेट करती है, तो वो क्या करती है, वो आइदर थ्रू वाईफाई और आइदर थ्रू अ वायर, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन। इन द सेम वे एक इंसान से दूसरे इंसान तक हम रिलेट कैसे करते हैं, दैट रिलेशनशिप इज थ्रू कम्युनिकेशन। और हमने इस कम्युनिकेशन को इतना नॉर्मल मान लिया है, इसको हमने इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया है, that we have not consciously worked on this concept of communication. हमने उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया, और उस चक्कर में वो रिश्ते की जो जो गरिमा थी, या रिश्ते की जो एक काबिलियत थी, हम उस रिश्ते की काबिलियत को, उस पोटेंशियल को मैक्सिमाइज नहीं कर पाते। बिकॉज उस रिश्ते से कनेक्ट करने का जो जरिया है कम्युनिकेशन, उसको हमने ढंग से या इन डेप्थ में समझा नहीं। तो हल्का सा उसमें रोशनी डालते हैं आज। एंड with a wish, with a thought, with a belief that आप आज की समझ को लेके अपने रिश्ते को और मजबूत करोगे, इस सोच के साथ इसको शुरू करें। तो कम्युनिकेशन देखो ना, कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स। इट कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स। ओके, चलो एक मैं आपसे सवाल पूछता हूं, एंड उस सवाल का फटाफट आंसर देना, एंड सो दैट अब मुझे समझ में आएगा कि आप मेरे साथ हो कि नहीं। ठीक है? मेरा सवाल, एक तो आई एम गिविंग अ सिचुएशन में एक सवाल पूछूंगा, तो मुझे समझ में आएगा आप लोग मेरे साथ हो कि नहीं हो, कहीं ऐसा ना कि कहीं घूम रहे उधर उधर। सिचुएशन ऐसी है कि एक बहुत बड़ा ग्रीन एक फील्ड है, एक मैदान है हरा, बहुत घास उसमें उगी हुई है, और एक बड़ा अच्छा सा सुंदर सा परिवार उस मैदान पे, उस ग्राउंड पे घास चल रहा है। सो देयर इज मामा बुल, देयर इज पापा बुल एंड देयर इज बेबी बुल। तो ये 3 जनों का परिवार, जहाँ मामा बुल है, पापा बुल है और बेबी बुल है, ये लोग ऐसा घास खा रहे हैं, और बड़ा सुंदर समय है, सुबह सुबह धूप निकल रही है, हरी घास है, और ये परिवार घास खाने निकला सुबह। बच्चे बच्चे होते हैं, तो थोड़ा हुड़दंगबाजी होती है, थोड़ी मस्ती होती है। तो ये जो बेबी बुल है, ये बेबी बुल अपनी मस्ती में घास खाते खाते थोड़ा दूर निकल गया, और मामा बुल और पापा बुल, इनको भी बहुत दिनों बाद ऐसी धूप और अच्छा सुबह मिली है, तो ये दोनों भी रोमांटिक होते हुए अपने घास चरने में लगे हुए हैं। इन्होंने देखा नहीं इनका बच्चा किधर चले गया। तो ये बच्चा जो है, ये बेबी बुल जो है, ये अपना जा रहा है घास खाते खाते, ये अचानक एक गड्ढे में गिर जाता है। अब गड्ढे में गिर गया, इसको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बाहर निकलूं। बड़ी विचित्र सिचुएशन है, बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। बहुत चिल्लाता है, पुकारता है, लेकिन मामा बुल और पापा बुल जो है, ये दोनों तो अपने रोमांस में लगे हुए हैं, इनको सुनाई नहीं दे रहा है क्या हो रहा है, और थोड़ा दूर भी थे बच्चे से। एंड दिस बेबी बुल इज स्क्रीमिंग, शाउटिंग, बट कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है। पैनिक हो जाता है, उसको घबराहट होती है, कभी लाइफ में अकेले नहीं रहा, कोई नहीं है साथ में, अब तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई, ऐसा उसको लगता है। तो बहुत देर के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, वो कैसे भी करके कहीं कुछ चीज को पकड़ पकड़ के, वो अपने पैर को फंसा के मिट्टी में, वो उस गड्ढे से बाहर निकलता है।
और जब गड्ढे से बाहर निकलता है तो एक बच्चा जब उस मुसीबत की सिचुएशन से बाहर निकलता है तो वो ऐसा रोता बिलखता हुआ वो चाहता है कहाँ है, तो वो भागता है। तो मेरा सवाल आपसे है कि वो बच्चा जो है वो निकला अभी मुसीबत से बाहर और सामने उसके दो ऑप्शंस हैं कि उसके सामने मामा है, उसके सामने पापा है। तो वो बच्चा किसके पास जाएगा जब वो उस मुसीबत से बाहर निकलता है? तो मुझे फटाफट बताओ कि उसके सामने मामा बुल है, उसके सामने पापा बुल है, तो वो किसके पास जाएगा? ऐसा फटाफट टाइप करके मुझे बताओ। साधारण एक बच्चा कहाँ जाएगा? मामा बुल के पास, और पापा बुल के पास, मामा बुल के पास। हाँ, टाइप करो फटाफट कि आपके हिसाब से वो बच्चा कहाँ जाएगा? मामा बुल के पास। अच्छा, मम्मी वाले बड़े लोग हैं इधर। ये सब तुम लोग मम्मी के पास भागे हो। वो कह रहे बोथ नहीं नहीं, ऑप्शन एक है उसके बाद। तो नॉर्मली वो जाता है तो किसके पास जाएगा? माँ के पास जाएगा। ओ मामा बोल। ओके, ठीक है, चलो। अभी मेरा सवाल को दोबारा सुनो। To whom he feels easy to communicate, who listens to him peacefully and will not scold. जो ज्यादा नजदीक है, अच्छा उसके पास जाएगा, ठीक है। जो डिस्टेंस में ज्यादा नजदीक है या फिर जो दिल के नजदीक है उसके पास जाएगा, ठीक है। क्या क्या बढ़िया आंसर निकालती हो तुम लोग। हम्म, जो डिस्टेंस वाइज नजदीक उसके पास जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ मेरा सुनो, सिचुएशन क्या दी मैंने आपको। मैंने कहा एक ऐसा परिवार है, मामा बुल, बेबी बुल एंड पापा बुल। और वो बच्चा गड्ढे में गिर गया, गड्ढे से बाहर निकला। ही वाज काइंड ऑफ स्कैर्ड, ही वाज नॉट श्योर व्हाट विल हैपन टू हिम, एंड देन ही गेट्स फ्री। एंड उस मोमेंट ऑफ फ्रीडम में जब उसको लगता है मेरी जिंदगी मिल गई, एक राहत की सांस लेता है और वो भागता है। और मैंने आपसे कहा किसके पास जाएगा भाग के? तो आप में से सबने कहा कि अच्छा, एक दो हैं वो कहते हैं सर किसी के पास नहीं जाएगा, पड़ोसी के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? तो बहुत से लोगों ने, ऑलमोस्ट 90% पीपल आंसर्ड कि वो मामा बुल के पास जाएगा। यू नो, आप में से 8-10 10%, 9% पीपल सेड ही विल गो टू टू पापा बुल। और एक दो लोगों ने कहा किसी के पास नहीं जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो। कभी तुमने देखा है मामा बुल को? अ बुल इज अ बुल, देयर इज नो मामा बुल, देयर इज अ बफलो, देयर इज नथिंग कॉल्ड मामा बुल। बैल होता है, मम्मी बैल नहीं होती, पापा ही बैल होता है। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड मामा बुल, देयर इज ऑलवेज बफलो एंड अ बुल एंड अ बेबी बुल और अ बेबी बफलो। तो आप लोग सुन नहीं रहे हो। तो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा स्टेप होता है कि आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। आर यू देयर, आर यू लिसनिंग और नॉट? एंड प्रॉब्लम हम में से बहुत से लोगों को क्या है कि वी लिसन टू रिप्लाई, वी डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड अ मामा बुल, देयर इज कोई ऐसा कोई बुल नहीं होता जो मामा बुल होता है। तो समझ में आया लफड़े किधर है तुम्हारे? तो लफड़े चालू होते हैं फ्रॉम दिस वेरी थॉट, वेरी दिस वेरी बिगिनिंग इटसेल्फ इज दैट वी आर नॉट ग्रेट लिसनर्स। और कम्युनिकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है लिसनिंग। और हम जो लोग सुनते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि 5 लेवल्स ऑफ लिसनिंग क्या है। बट अक्सर हम जो सुनते हैं, हम सुनते हैं जवाब देने को, हम सुनते नहीं है समझने को, हम सुनते हैं जवाब देने को। सो अभी थोड़ा सा इसको हल्का सा ब्रेकअप करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल Vinod is there. I've just read a name on the comment section. So Vinod was there. So Vinod goes to a doctor. और मेरा फेवरेट एग्जांपल है जो मैं अक्सर बहुत बार देता हूँ। तो विनोद गोज टू अ डॉक्टर क्योंकि उसके पेट में दर्द है। एंड जैसे ही वो क्लिनिक के डोर खोल के अंदर देखता है, एंड डॉक्टर बोलता है हाँ भाई क्या हुआ सर, पेट में दर्द है। एंड डॉक्टर जो है उसको बोलता है ये 2 पीली गोली खा लो। एंड ही गिव्स हिम दोस 2 येलो टैबलेट्स एंड सेज दर्द ठीक हो जाएगा। वेरी हाई चांसेस कि विनोद जो है वो दवाई नहीं खाएगा। वो क्यों नहीं खाएगा? बिकॉज समवेयर विनोद इज थिंकिंग यार मैं तो गया, इनको मैंने बोला दर्द है, इन्होंने तो सीधे इमीडिएटली रिप्लाई कर दिया, इमीडिएटली इन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया।
उन्होंने मुझे डायग्नोज नहीं किया. He is not diagnosed me, he is not understood me. तो विनोद का विश्वास डॉक्टर पे कब होता है ज्यादा? जब डॉक्टर उसको बोलेगा, अच्छा विनोद बैठो. ये बैठ जाते हैं. फिर डॉक्टर कहता है, अच्छा विनोद बोलो क्या हुआ? सर मेरा ना पिछले कई दिन से पेट में दर्द है. तो डॉक्टर पूछता है, अच्छा कितने दिन से दर्द है? कहते सर 2-3 दिन हो गए. 2 या 3? नहीं एक्चुअली सर 3 दिन हो गए. अच्छा तुमने क्या खाया बताओ मुझे हिस्ट्री. तो ये बताता है मैंने कितना पानी पूरी खाया, कितना मैंने वड़ा पाव खाया, कितना मैंने भेलपूरी खाई. वो पूरा लिस्ट बना के विनोद देते. डॉक्टर कहता है अच्छा. फिर डॉक्टर कहता है अच्छा लेटो इधर. एंड डॉक्टर उसको लिटाता है. फिर डॉक्टर स्टेथोस्कोप निकालता है. वो ही चेक्स हिम. देन वो पीछे पीठ में बिठाता है. फिर पीठ में से लगाता है. फिर वो हैमर लेके आता है. हथौड़े से पैर में मारता है, घुटने में मारता है. ब्लड प्रेशर लेता है डॉक्टर. उसके बाद वो बिठाता है और ऐसा चश्मे को यूं नीचे करता है और उसके बाद वो प्रिस्क्रिप्शन बुक निकालता है. एंड देन डॉक्टर राइट्स. वही 2 पीली गोली लिखता है. कहता है ये 2 गोली खा लो, आई एम श्योर यू विल बी ओके. विनोद कहता है यार डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बढ़िया आपने डायग्नोज किया है. एंड चांसेस आर वेरी हाई दैट विनोद विल टेक दोस टैबलेट्स. टैबलेट वही थे जो पहले दे रहा था डॉक्टर, लेकिन पहले में विश्वास नहीं था, अब में विश्वास है. बिकॉज विनोद को एहसास हुआ डॉक्टर अंडरस्टूड मी. डॉक्टर ने नब्ज पकड़ ली. डॉक्टर ने मुझे समझा, मेरी सिचुएशन को समझा और उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बताया क्या. So what I want to make you understand is कि we got to listen first, and we got to listen not to reply. We got to listen to understand. हमें सुनना पड़ेगा समझने के लिए, फिर बोलना पड़ेगा समझाने के. हम लोग सुनते हैं बोलने के लिए, हम सुनते नहीं है समझने के लिए. सो कम्युनिकेशन के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं. देखो आप, हाउ डू यू कम्युनिकेट? यू कम्युनिकेट थ्रू 4 वेज. सो या तो आप जो है लिखते हो, तो राइटिंग इज कम्युनिकेशन, रीडिंग इज कम्युनिकेशन, राइट? Speaking is communication and listening is communication. There are 4 aspects of communication. अब इन चारों aspects में देखो आप कि बचपन से जो है आप जब स्कूल गए और बचपन से लेके अब तक आपको इन चारों में से किन aspects में ट्रेनिंग लेने के लिए बोला गया और आपने किन aspects में ट्रेनिंग ली? इन चारों में से बताओ मुझे. Out of these 4 aspects of communication, in which aspects have you taken training or were you forced to take training? चलो मुझे बताओ. इन चारों में से कौन से एस्पेक्ट्स में आपको ट्रेनिंग जो है लेने को बोला गया और आपने ट्रेनिंग ली? स्पीकिंग, ओके. लिसनिंग में कौन सी ट्रेनिंग दी गई आपको? राइटिंग एंड रीडिंग. आप देखो ना, पीछे मुड़ के देखो, गो टू योर स्कूल डेज. यू आर मेड टू राइट ए, and then you were made to read, then you were made to speak. तो आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में सबसे कम हुआ स्पीकिंग, वो रीडिंग एंड राइटिंग में बड़ा एफर्ट डाला गया. एवरी स्कूल, नर्सरी से लेके आप क्लास चले जाओ, रीड एंड राइट, रीड एंड राइट, रीड एंड राइट. तो अगर आप, जिनकी अंग्रेजी कमजोर है, जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, it's not because you can't read English. You can read English. It's not that you can't write English. You can write English. You can't speak English fluently because you are made to read and write. So everybody knows how to write A, B, C, D. Everybody knows how to read A, B, C, D. But it's just speaking which is a challenge. और उससे भी बड़ा चैलेंज है listening, because मुझे ऐसा, मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि listening पे ऐसा कोई खास हमने एफर्ट डाला नहीं और ना ही कोई स्पेशल क्लास हुई where we were made to listen. कि हमें जिस ढंग से राइटिंग के बारे में बोला गया, यू शुड राइट लाइक दिस, यू शुड राइट अ कर्सर स्टाइल, यू शुड राइट अ फ्री हैंड स्टाइल, जो भी स्टाइल है राइटिंग के, हमें जिस ढंग से टीचरों ने मारा कि तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है, डांटा, जिस ढंग से हमें हमें देखा गया हमारी राइटिंग की वजह से, उस ढंग से हमारे
लिसनिंग की वजह से हमें देखा नहीं गया। हमें ना किसी ने डांटा, ना किसी ने समझाया, ना किसी ने हमें उस पे मेजर किया हमारे परफॉर्मेंस को। बट वी वर गिवन मार्क्स ऑन आवर नीटनेस एंड हैंड राइटिंग। वी हैड एलोक्यूशन वेयर यू हैड टू रीड समथिंग, यू हैड टू मक अप समथिंग, और आप जाके बोलते थे। वी वर कॉल्ड इन क्लास इन फ्रंट कि बुक लेके आओ, वो चैप्टर को पढ़ना चालू करो। सो वी वुड रीड एंड वी वुड स्पीक। लेकिन लिसनिंग पे कोई भी क्लास नहीं हुई। लिसनिंग में कहीं पर भी हमारा कोई एनालिसिस नहीं हुआ, कोई असेसमेंट नहीं हुआ। Am I right or not? So out of the four aspects, मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन सा अच्छा है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, सारे चारों एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। बट आउट ऑफ ऑल दोस फोर एस्पेक्ट्स, दिस वन एस्पेक्ट हैज बीन लेफ्ट ऑन इट्स ओन, कि अपना आप हो जाएगा। इसको हमने फिजियोलॉजिकल मान लिया। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि हमने लिसनिंग को हियरिंग बना दिया। हियरिंग इज फिजियोलॉजिकल, वो तो शारीरिक रूप से हो रहा है। आप नहीं भी चाहोगे तो वो आपके कान में साउंड जा रहा है। But listening is not just putting sound in your ears. Listening is you processing that sound. That whatever sound is entering your mind through your ears, आप उसको प्रोसेस कर रहे हो, उससे कुछ निष्कर्ष निकाल रहे हो, उसको आप उससे अपने अंदर कुछ चीजें ले रहे हो। So listening is much more powerful than hearing. तो हमने listening को hearing बना के छोड़ दिया। ये हमारी व्यथा है। Am I right or not? And we all have our lives as case studies. चाहे आपने कितने भी साल जिंदगी जी है, तो आप देखो पीछे मुड़ के, how much time did we invest on improving our listening skills? और अगर मैं जो भी लिसनिंग पे काम किया होगा ना, तो हमने लिसनिंग में किसी भाषा को समझने के लिए काम किया होगा। हमने किसी सिचुएशन को समझने के लिए काम नहीं किया होगा। हमने किसी इंसान को समझने के लिए लिसन नहीं किया। हमने उस भाषा को समझने के लिए लिसन किया, अटेंटिव। So that itself also is not very proper listening, right? So you got to understand this very aspect that in communication, all these four aspects are important. But in a relationship, हम लोग जो है, we use speaking and listening to maintain that relationship. हम कुछ बोलते हैं, हम कुछ सुनते हैं। हम कुछ बोलते हैं, हम कुछ सुनते हैं। तो जब कोई इंसान बोलता है, तो वो अपनी शेयरिंग कर रहा है। वो अपना कुछ अंश आपको दे रहा है। और वो जब शेयर कर रहा है आपसे कुछ, वो अपने कम्युनिकेशन, अपने बोलने के माध्यम से आपसे शेयर कर रहा है। So through his sharing, he is saying, hello, this is important. What I'm saying, what I'm talking is important. Hello, can you understand? तो वो आपसे जब बात कर रहा है, तो वो इस विचारधारा से बात कर रहा है कि आप उसको समझोगे। वो आपसे इसलिए नहीं बात कर रहा है कि आप उसको रिप्लाई दो। वो कह रहा है कि मुझे समझो। वो आप पे एक जवाबदारी डाल रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है कि जब आपका बच्चा आपको बोलता है कि आज स्कूल में मजा नहीं आया, तो आपसे जब वो शेयर कर रहा है ये बात, तो वो कह रहा है कि समझो। लेकिन हमारा रिप्लाई रेडी रहता है, तेरे को तो कभी मजा नहीं आता, तेरे को तो पढ़ाई में मजा नहीं आता, तो स्कूल में कहां से मजा आएगा? ना उसने बोला मजा नहीं आया, आपने अपने सुना और आपने रिप्लाई कर दिया। अरे वो रिप्लाई नहीं मांग रहा था आपसे। उसको नहीं चाहिए था आपसे कोई रिप्लाई, उसको चाहिए था कि आप सुनो और आप समझो मुझे। एंड दैट्स वेयर वी गो फॉर अ टास्क। हेलो, इज इट मेकिंग सेंस टू यू? तो इसलिए बोलते ना कि वो वाइफ घर में है और हस्बैंड घर आया, और वाइफ ने कहा मेरे सर में दर्द है। जैसे ही हस्बैंड ने सुना मेरे सर में दर्द है, तो उसका रिप्लाई निकला, सैलेडॉन खा लो। अरे बाबा, सैलेडॉन खाने की तो अक्ल उसको भी है। तुम्हारी वाइफ है, तुमसे ज्यादा अक्ल है उसको। She has more intelligence than what you have, right? And she will tell you day in and day out how much intelligent she is. और अगर तुमने ये बोल दिया सैलेडॉन खा लो, तो तुम्हें पूरी इंटेलिजेंस की पूरी डिक्शनरी सामने आ जाएगी। So what she is saying to you when she says मेरे सर में दर्द है, तो उसने शेयर किया, तो कह रही मुझे समझो। तो तुमने वो सुना और तुमने रिप्लाई कर दिया, तो तुम्हारे यहां से गया और यहां से निकल गया आंसर।
वो कह रही नहीं नहीं, यहाँ से इसको बंद रखो, जिप रखो, इसको इसको अंदर रखो और अंदर जो है ना, इसको अंदर प्रोसेस करो कि मेरे सिर में दर्द क्यों है। इज इट मेकिंग सेंस टू यू? सो आई जस्ट वांट यू टू एक्सपेरिमेंट दिस वीक। आई वांट यू टू जस्ट एक्सपेरिमेंट, बिकॉज इस पर टाइम लगेगा, ये इस मोड में जाने में टाइम लगेगा कि आपके घर में जो भी आपके क्लोज रिलेशन है, जो नजदीक के रिश्ते हैं, उस उन रिश्तों में जो है, आप सिर्फ सुनो। अंदर से बड़ी अर्ज आएगी कि मैं बोलूं, नहीं नहीं बोलना नहीं, सिर्फ सुनो और उस सुनने को प्रोसेस करो। और अभी मैं आपको सामने शेयर करूंगा कि 5 तरीके का सुनना कैसे होता है, एंड विच ऑफ द 5 यू शुड गो टू, बट आई वांट यू टू प्रैक्टिस दिस एट होम। बड़ा इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूं, और तुम्हारे रिश्तों में किस लेवल का इंप्रूवमेंट आएगा तुम खुद सरप्राइज हो जाओगे। बिकॉज हर रिश्ते की बुनियाद कम्युनिकेशन है, और हर कम्युनिकेशन की बुनियाद बुनियाद लिसनिंग है। लुक एट द क्रोनोलॉजी। हर एक अच्छे रिश्ते की बुनियाद एक अच्छा कम्युनिकेशन है, और हर एक अच्छे कम्युनिकेशन की जो बुनियाद है वो है अच्छी लिसनिंग। सो इफ यू कैन बी ग्रेट लिसनर्स, if you can be wonderful listeners, we will end up being wonderful communicators. And when we'll communicate well, our relationship will also be well. So ये listening का जो concept है, इसको आप समझो। ये listening का 5 तरह के levels होते हैं। So first level is where people listen with ignorance, मतलब they ignore you, मतलब वो बैठा हुआ है सिर्फ आपके सामने physically, आप जो बोल रहे हो वो यहां अंदर भी नहीं जा रहा है, वो इग्नोर कर रहा है उसको। और आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आएगा कि वो आपको नहीं सुन रहा है। कभी कभी देखो ना, आप सेल्स में होते हो, तो आप जा रहे हो किसी प्रोस्पेक्ट के पास और आप अपना प्रोडक्ट उसको पिच कर रहे हो। और मैं जब भी मैं सेल्स ट्रेनिंग लेता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूँ सेल्स की टीम को कि देखो उसकी बॉडी लैंग्वेज, देखो उसकी बॉडी लैंग्वेज से तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कि वो आपको सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। राइट सर, व्हेन सम एम्प्लॉय जस्ट टॉक्स टू यू, हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट वी नीड, आते हैं उसमें। कभी आप जब जाते हो सेल्स में, जाओ आप, या कभी ऑफिस में देखो कि आप अपने बॉस से आप कह रहे हो कि सर आई वांट लीव, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो सुन ही नहीं रहा है। या आप कभी आप एज अ लीडर आप जाते हो शॉप फ्लोर पे और आप बोलते हो अपने किसी टीम मेंबर को वहां पर कि काम को ऐसे नहीं ऐसे कर, अच्छे ढंग से कर ले, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो सुन ही नहीं रहा है, इग्नोर मार रहा है पूरा। सो दे आर देयर फिजिकली, दे आर देयर एज इफ कि हाँ मैं सुन रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं सुन रहा है, वो इग्नोर पूरा उसने कर दिया। तो दिस इज द फर्स्ट लेवल। ऐसे में कुछ नहीं हो सकता, व्हेन पीपल इग्नोर, तो नथिंग मच कैन हैपन, राइट? The now this is something which you have to understand from a perspective कि जब कोई इंसान इग्नोर करता है आपके कम्युनिकेशन को, राइट, तो वो कम्युनिकेशन जो है वो आगे बढ़ेगा नहीं, फिर कुछ होगा नहीं उसका। सेकेंड लेवल ऑफ लिसनिंग इज where somebody is pretending to listen to you. ये बड़ा मजेदार होता है। आपको ऐसा लगता है कि वो सुन रहा है, लेकिन वो इंसान एक्चुअली प्रिटेंड कर रहा है। तो वो अच्छा, वाह, I'll give you a very beautiful you know example of it. बहुत साल पहले की बात है, and I remember that, ऐसे बहुत बार हुआ होगा, लेकिन एक कभी कोई किस्सा आपके मन में रह जाता है। तो this is one such example which stayed with me because I laughed so much, and I could share with that person what I felt. So एक Chrysalian, she was there with me, and 2002 या 3 की बात है, तो मेरे ऑफिस में आई मुझे मिलने के लिए, and she is still in touch with me and we laugh over it even today. तो वो मेरे से मिलने आई, and I was talking something. तो मैंने देखा कि जो भी मैं बोल रहा हूँ उसमें वाह सर, अरे वाह, एंड उसका फेवरेट वर्ड था वाह। तो मैं कुछ भी बोलूं, वाह वाह, शायद सैफ अली खान ने वहीं से लिया होगा, वाह वाह। तो इतना उसने वाह करा। तो पहले पहले तो मुझे लगा कि यार शी इज एक्चुअली एंजॉयिंग व्हाट आई एम सेइंग, एंड शी इज रियली मीनिंग व्हाट आई एम सेइंग। फिर मुझे लगा नहीं, इसका वाव जो है ना रिपीटेटिव हो रहा है। तो मैंने अपने कम्युनिकेशन में डाला, यार माय नेबर्स डॉग डाइड यस्टरडे। मैंने बात करते करते बीच में डाल दिया कि मेरे नेबर का कुत्ता मर गया।
एंड शी सेड वाओ। और मैं वहां इतना हंसा उसके सामने, मैंने कहा तेरे को मालूम है तूने क्या करा अभी? कह रही नहीं, तो सडनली शी सेड नहीं सर। मैं कहा तूने वाओ बोला? कह रही हाँ सर आप अच्छी बात कर रहे थे ना। अरे मैंने कहा मैंने बोला मेरा नेबर का कुत्ता मर गया, तूने बोला वाओ। एंड शी वाज सो एम्बैरेस्ड एंड शी सेड, मैं कहा तू कहाँ खोई हुई है? So she was pretending to listen, but she was not listening. तो ये सेकंड लेवल ऑफ लिसनिंग होता है, वेयर पीपल गिव यू दैट फील कि वो सुन रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं रहे होते हैं। बड़ा मजेदार होता है, यू यू अंडरस्टैंड दिस। और आपने भी कुछ बहुत बार किया होगा कि आप प्रिटेंड कर रहे हो सुनने की लेकिन आप सुन नहीं रहे हो, राइट? you're somewhere lost in your mind, somewhere in some other world, लेकिन आप उसकी इंसल्ट नहीं करना चाहते, तो आप जो है अपना अच्छा पूरा प्रिटेंस करके यू आर देयर, आप स्माइल दे रहे हो, आप उसमें कुछ ऐड ऑन कर रहे हो, वाओ दैट्स नाइस, बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ नहीं जा रहा है अंदर सिस्टम के अंदर। ऐसा हुआ है क्या आप लोगों के साथ? हम्म, मतलब ये बहुत होता है मेरे साथ, अनजाने में आपने सोच में खो जाता हूँ। तो हम यू नो हाँ, बिकॉज हम सुनते हैं और सुनते सुनते हम कहीं अपने उसमें चले जाते हैं। होता है ये, इट इट हैपेंस विद मेनी पीपल कि यू नो वी आर वी स्टार्ट लिसनिंग। तो ये क्यों होता है? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि either something is interesting in our mind which is much more interesting than this person sitting in front, या तो ऐसा होता है। सेकंड कारण होता है कि हम अपने ही लाइफ से उसकी बातों को कनेक्ट करना चालू कर देते हैं और फिर हम अपनी लाइफ में ट्रिप पे चले जाते हैं कि वो बोल रहा है सामने से कुछ, और सपोज उसने बोला कि यू नो सर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है अभी आजकल, यू नो दिस इज टू, कभी एक टीम मेंबर ने बोला बॉस को आके कि सर दिस वर्क इज गेटिंग, आई एम गेटिंग ओवरवेल्म्ड विद दिस वर्क, बहुत काम होता है सर अभी ये। तो वो आपसे बात कर रहा है एंड सडनली यू गो इनटू योर ओन थॉट प्रोसेस, यार जब हम इसकी एज के थे तो हम तो यार कभी ऐसा नहीं बोलते थे कि इतनी मेहनत है, हम तो काम करते थे, हमारी तो हिम्मत भी नहीं होती थी कि जाके बॉस को बोलें कि इतना काम है। नाउ यू आर इन योर ओन ट्रिप, वो आपसे बात कर रहा है और आप सुन रहे हो, लेकिन आप वो नहीं सुन रहे हो, आप अपनी कहानी सुन रहे हो, या फिर आप कहीं और खोए होते हो, तो यू आर जस्ट काइंड ऑफ प्रिटेंडिंग टू लिसन, एंड दिस हैपेंस विद मेनी पीपल। तो दिस इज द सेकंड लेवल ऑफ लिसनिंग। पहला तो इग्नोर मारता है इंसान, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। सेकंड में जो है वो प्रिटेंड कर रहा है, वो आपकी कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो मदद नहीं कर पाएगा। थर्ड इज वेयर पीपल आर सेलेक्टिव इन लिसनिंग, सो दे लिसन व्हाट दे वांट टू लिसन, एंड दिस इज, आई वुड नॉट से बेटर, बट देन एटलीस्ट वो सुन तो रहा है वो इंसान, लेकिन वो सिलेक्टिव है, वो अपने मतलब की बात सुन रहा है, राइट? कभी कभी होता है ना घर में हस्बैंड वाइफ के साथ कि वाइफ या हस्बैंड दोनों में से कोई सिलेक्टिव बात उठा लेते हैं। आपने सब बातें करी होंगी लेकिन उसमें से उसने सिलेक्टिव बात उठा ली, और फिर आपकी धुलाई होती है उस सिलेक्टिव बात से, और आप कहते हैं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। उसने कहा कहा क्यों नहीं, तुमने यही कहा था। अरे मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था। दिस इज व्हाट मीडिया डज, मीडिया पिक्स अप दिस सिलेक्टिव पार्ट और उसको काट छाट के जो है वो उसने सिलेक्टिव लिसन किया और उसको वो पेश कर दिया। दिस इज व्हाट हैज बीन सेड। गौर से देखिए, सेंसेशनल न्यूज, so the people who listen selectively, and it is because maybe they have their own agenda, तो उस एजेंडे से जो मिल रहा है उनका अपना खुद का फिल्टर होता है, खुद की छन्नी होती है, तो जो आप बोल रहे हैं वो उस छन्नी में से जो उनको चाहिए वही छान के ले लेते हैं, चाहे आपने उसका वो कॉन्टेक्स्ट बोला हो चाहे नहीं बोला हो, बट दे पिक इट अप। दिस इज ऑल्सो नॉट ग्रेट लिसनिंग, एंड इट मेनी टाइम्स इट बिकम्स डेंजरस। कभी कभी मुझे लगता है यार इग्नोर वाला बंदा ही सही है, सुन तो नहीं रहा ना, ये तो सुन के भी अपने मतलब का कुछ निकाल के ले जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा क्या लेके गए। सो दिस इज सिलेक्टिव लिसनिंग। मैं वो जोक बोलता हूँ ना हमेशा अपने वर्कशॉप्स में कि व्हाट इज सिलेक्टिव लिसनिंग ऑल अबाउट। तो सिलेक्टिव लिसनिंग एग्जांपल देता हूँ जो मेरा फेवरेट एग्जांपल है। आई एम श्योर सम ऑफ यू हैव बीन इन माय वर्कशॉप्स, यू हैव लिसन्ड टू दिस। और वर्कशॉप से मुझे याद आया कि if you really want to be a part of my workshop is coming up in March, and the life leadership workshop, the life 360 workshop, जो हमारी सबसे जबरदस्त workshop है, if you want to be a part of that, so that is happening in the month of March. You can take your 3 days out, 3 दिन निकालो। 16, 17, 18 मार्च का वर्कशॉप है, बहुत जबरदस्त, 3 दिन धमाल होता है बैच में।
And so many of you have done it. If you want your friends, your relatives to be a part of the workshop, so you can make them be a part of it. So I'm looking forward to that batch coming up. So इस साल का I think second batch है. पहले मैं ये workshop every month लेता था, but now time is a bit of a constraint. And but ये है कि इससे मैंने अपना career चालू किया था way back in 1998 with this workshop. So I just want to continue this workshop and add and give whatever I have picked up over the last so many years. तो वो मैं continue करना चाहता हूँ कि let me continue giving it back. So if you really want your loved ones to be a part of it, 3 days of life-based subject and dhamal, मतलब ऐसा it's a different world those 3 days. So just याद आया workshop से कि वो workshop आ रहा है before I miss out on it. मेरी team बोलती है आपने बोला नहीं, आपने share नहीं किया, you know, things like that. So just recalled and I thought let me just share with you. And you can get the details from my team. You can message a number if you're keen, interested. My team will get back to you and will share with the details. तो मैं अपने वर्कशॉप में एक बड़ा अच्छा सा एक जोक बोलता हूँ for selective listening. So see if you can connect with this. So it so happened one day कि you know Akshay he went to college with his friends and कोई बाहर से एक प्रोफेसर आया चैतन्य के नाम से. तो चैतन्य जोशी फ्रॉम अहमदनगर, ये आए प्रोफेसर, बड़े अच्छे प्रोफेसर है. ही इज नोन फॉर हिज एबिलिटी टू स्पीक वेल. एंड वो मिलते हैं स्कूल के प्रिंसिपल से, कॉलेज के प्रिंसिपल से, एंड सेज आई वांट टू एड्रेस योर स्टूडेंट्स. एंड अभी बहुत देश में जो है ना बहुत मुश्किलात चल रही है. यंगस्टर्स दे आर ऑन टू अल्कोहलिज्म एंड आदतें खराब हो गई हैं. बहुत जल्दी एज में लोग शराब पीने लग गए हैं एंड थिंग्स लाइक दैट. सो आई वांट टू टॉक टू देम अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल. तो प्रिंसिपल बोलता है आइए, बिल्कुल आइए, हमारे तो कॉलेज में ऐसे अक्षय जैसे बहुत लोग हैं जिनको बहुत जरूरत है इन सब चीजों की. तो चैतन्य साहब आ जाते हैं in the college and he's addressing all the students in front. तो वो 2 बीकर लेते हैं एंड दिखाते हैं पूरे स्टूडेंट्स को कि आई हैव 2 बीकर्स, और एक बीकर में होता है पानी और एक बीकर में होता है अल्कोहल. तो वो कहते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज अ बीकर विद वाटर एंड दिस द बीकर विद अल्कोहल. फिर अपने पॉकेट से एक छोटा बॉक्स निकालते हैं जिसमें लाइव वर्म्स होते हैं. तो उसमें से एक वर्म को निकालते हैं चिमटे से और उसको डाल देते हैं अल्कोहल के बीकर में. जैसे ही वो अल्कोहल के बीकर में डालते हैं तो वो अल्कोहल में वो जो वर्म है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वो मर जाता है, और वो दिखाते हैं स्टूडेंट्स को. फिर एक और निकालते हैं वर्म, एक और वर्म निकाल के पानी के बीकर में डालते हैं और पानी में वो वर्म ऐसे तैरता है, घूमता है, वो दिखाते हैं बच्चों को. लुक एट दिस. तो कहते हैं इतना बढ़िया प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मैंने दिया है. तो वो चैतन्य जो है उस अपने उस कॉन्फिडेंस के साथ कि देखो कितना बढ़िया मैंने डेमो दिया है, सबको समझ में आ गया. तो ऐसा खड़े होके पूछते हैं, ओके बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट व्हिच आई शोड टू यू. तो लास्ट बेंच में अक्षय था. अक्षय ने बोला सर. चैतन्य साहब को नहीं मालूम कि अक्षय जो है ये धुरंधर आदमी है. तो अक्षय वहां से बोलता है हाँ सर. तो कहता है अक्षय बोलिए आपने क्या समझा. तो अक्षय बोलता है वहां से, सर मैंने ये समझा कि अगर हम शराब पिएंगे तो हमारे पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे. तो दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव लिसनिंग, कि चैतन्य बाबू क्या बोल रहे हैं और ये अक्षय साहब क्या समझ रहे हैं, और जो फिर समझ लिया फिर वही घर लेके जाते. तो बड़ा जरूरी है कि आप सेलेक्टिव लिसनिंग ना करें. बहुत बार जब मैं एहसास बैच लेता हूँ या कभी टॉक होता हूँ रिलेशनशिप, तो वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है सुनो तुम्हारे लिए है. वो कहते हैं क्यों तुम्हारे लिए है. अरे बाबा सेलेक्टिव लिसनिंग मत करो. जो अपने मतलब की बात मत निकालो, पूरी सब्जेक्ट को सुनो, तभी तो आप समझ पाओगे कि मैं क्या कह रहा हूं. बट व्हेन इट्स सेलेक्टिव लिसनिंग यू मिस ऑन द क्रक्स, यू मिस ऑन द मेन एस्पेक्ट. सो द थर्ड लेवल ऑफ लिसनिंग इज सेलेक्टिव लिसनिंग. फिर इससे हल्की से एक और ऊंची लेवल की लिसनिंग होती है which is called attentive listening. Now attentive listening is the best amongst जो मैंने बताया आपको कि ये बंदा जो है ना attention से सुन रहा है, ये अपनी पूरी स्किल लगा रहा है, ये कह रहा है मैं कोई पॉइंट मिस तो ना कर दूं, ये शायद नोट्स भी ले लेगा, ये अपने पूरे लिसनिंग स्किल्स को इस्तेमाल करके लॉजिकली सुन रहा है कि क्या है. So he is the nearest which you can get in terms of somebody who is listening to you. बड़ा टेंशन से सुन रहा है.
तो वो सारी टेक्निक लगा देगा सुनने की। तो कहता है सुनने के लिए क्या करना पड़ता है, अच्छा नोट्स बनाओ। तो उससे क्या होगा, इसको मालूम पड़ेगा कि मैं अटेंटिवली सुन रहा हूं, तो वो नोट्स लिखेगा, राइट। वो क्वेश्चंस पूछेगा, वो प्रोब करेगा, हाँ भाई इससे भी मालूम पड़ता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। बट दिस may not be the best form of listening. This is a skill based listening. It's good, it makes sense. That's what a doctor does. A doctor is attentive. A good doctor is attentive. A good doctor is going to take your details, but he's not a great doctor. A good salesman will take details. Okay, what is the challenge, what's the need which you have? But he's not a great salesperson, he's a good salesperson. So what makes a good doctor great, what makes a good salesman great, what makes a good husband great, what makes a good spouse great, what makes a good parent great? He goes beyond attentive listening. They go into emphatic listening. Abhi empathy aa gayi. So empathic listening is where you listen to feel. You don't listen to calculate. Attentive listening is you're listening with details to calculate. अब मैं क्या इसको response दूं? Empathic listening is you listen. मैं response होगा नहीं होगा अलग बात है यार, मैं सुन तो लूं इसको, मैं समझ तो लूं इसको, ये किस व्यथा में है, किस स्टेट में है, इसका इमोशनल स्टेट क्या है, इसका मेंटल स्टेट क्या है. I don't know what I can do, but I can listen to him. That is the listening of the highest level, where you just listen to understand. I don't know what will happen in the future, but I just need to understand. So there is no mind involved, there is no calculation involved, there is no skill involved. There is just you and the other person involved. बस दो लोग involved हैं with purity. वो कह रहा है और आप पूरी जान लगा रहे हो समझने में. आप आगे का सोच ही नहीं रहे हो कि मैं समझ के मैं क्या करूंगा. तेरा छोड़ो ना बात की बात, शायद मैं कुछ ना कर पाऊं, लेकिन ये समझना और उसको ऐसा लगना कि मैं समझ रहा हूं, ये जरूरी है. और एक रिश्ते में वही तो जरूरी है. एक रिश्ते में ये जरूरी है कि कोई आपको समझे. रिश्ते में ये जरूरी नहीं है कि कोई आपको एडवाइस करे. रिश्ते में जरूरी है कोई आपको समझे. एक पेरेंट के लिए जरूरी है कि अपने बच्चे को समझे. जरूरी नहीं है कि उसको एडवाइस मिले. A parent is not a counselor, not a coach. A parent is a parent. A spouse, a husband or a wife is not a coach, is not a counselor, not an advisor. He's just a spouse. He's just a husband or a wife. He has to understand the person so that he can understand the relationship. और फिर कुछ समझ में आया और फिर हम कुछ कर पाए तो अलग बात है. लेकिन पहला काम तो है हमें कोई सुने, हम समझे तो सही. And that is what is missing in relationships. कि समझने वाले लोग कम हो गए. बिकॉज समझने के लिए टाइम लगता है, समझने के लिए एफर्ट लगता है, समझने के लिए प्योरिटी लगती है, समझने के लिए एक विलिंगनेस लगता है, समझने के लिए एक इंटेंट लगता है, समझने के लिए एक बिल्कुल बोलते ना कि देयर इज नो कैलकुलेशन. कोई बोलते ना कि कनिंगनेस नहीं लगती. समझने के लिए सिंपलिसिटी लगती. हेलो, यू देयर विद मी? कुछ कनेक्ट हुआ? So what kind of listening you need to go to? I think this is one of the most awesome HMs which you could have attended. One of the most beautiful happy minds which you could have connected. Now, though every HM is powerful, but what I want you to understand कि जो impact हो सकता है इस happy minds का तुम्हारे life में, ये इतना जबरदस्त हो सकता है. Tell your friends to watch this on YouTube if they have missed out. मुझे सुनो और मुझे समझो मैं क्या कह रहा हूं. मुझे सिर्फ यहां से मत सुनो, मुझे यहां से सुनो.
कि तुम्हारे रिश्ते में जो कहीं कमी है ना, वो इसी चीज की है जो मैं तुम्हें अभी कह रहा हूं। समझो मेरी बात। इफ यू आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ और आपको बड़ा मजा आ रहा है मुझे सुनने में, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको कनेक्ट हो रहा है मेरी बात से, लिसन टू मी वेरी केयरफुली ना। आप मुझे सुन रहे हो और यू आर इन्वॉल्व विद मी, यू आर एब्सोल्युटली इनटू मी, बट सडनली जिस कमरे में आप हो, उस कमरे में से अगर हवा निकाल दी जाए, उसमें ऑक्सीजन बंद हो जाए, मैं कितना भी अच्छा बोल रहा हूंगा, मैं कितना भी अच्छा आपसे कनेक्ट कर रहा हूंगा, आप उस कमरे से बाहर भागोगे। am I right? You will run out of the room because you need air to survive. So survival is your motivation. आपको बचना है, आपको जिंदा रहना है, दैट इज योर मोटिवेशन। सो आप कहोगे छोड़ो इसको, सेशन को छोड़ो, एचएम को, आप भागोगे कहीं पर जहां से आपको हवा मिल जाए। नाउ लिसन टू, जिस तरह से हमें यह हवा चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, तो ऐसा रिसर्च ने पाया, ऐसा देखा गया है कि सेकेंड थिंग विच पीपल नीड आफ्टर एयर इज अ साइकोलॉजिकल एयर। एंड दैट साइकोलॉजिकल एयर मीन्स एक ऐसा रिश्ता जहां पर वो सांस ले पाए, जहां पर वो ऐसा कर पाए। द सेकेंड थिंग विच अ ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्स आफ्टर सर्वाइवल इज अ साइकोलॉजिकल एयर, इज अ रिलेशनशिप जहां पर वो सांस ले पाए। और वो सांस तभी ले पाता है जब उसको समझता है कि सामने वाला उसको समझ रहा है, that I'm understood. The moment you feel I'm understood, आप ऐसा उस रिश्ते में आप जो है ना, आप सांस ले लेते। तो बहुत से रिश्तों में घुटन है, बहुत से रिश्तों में सांस नहीं ले पा रहे, बिकॉज समवेयर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं। तो ना आप सबसे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो आपके आसपास के रिश्ते, forget about the world, forget about your team, your customers, forget about everybody, घर के ये 3-4 लोग, see if you can listen to them with an intent to understand. Don't listen to them with an intent to reply. Listen to them. Just listen. And then, once you listen, you will realize you understood them. And once you understood them, then see what has to be spoken to them, if anything. और बहुत बार तो ऐसा होगा कि जब तुमने उनको अंडरस्टैंड कर लिया, जब तुमने उनको समझ लिया, तुम्हें लगेगा यार कुछ नहीं बोलना है, बस। ऐसा भी हो सकता है। ये असाइनमेंट है इस हफ्ते का। अगर मेरी बात आपके दिल को छुई, इसका मतलब आपने मुझे बात को समझ लिया। और अगर मेरी बात आपके दिल को नहीं छुई, तो आपने मुझे अटेंटिवली सुना, लेकिन विद एम्पैथी नहीं सुना। और कुछ लोगों को तो समझ नहीं आया हुआ क्या एचएम में, तो आपने तो वैसे भी इग्नोर मारा है। कुछ लोगों ने अपनी वाइफ को सुनाने के लिए सुन लिया, आपने सिलेक्टिव लिसनिंग कर दिया। सो आई हैव दिस असाइनमेंट फॉर यू फॉर दिस वीक। तो करोगे इस हफ्ते ये असाइनमेंट? मुश्किल है नरेन, बट मुझे लगता है रिश्ते के लिए तो ये करना जरूरी है। और फिर रिश्ते में हो गया तो फिर देन वी कैन टेक इट टू आवर कस्टमर्स, टू आवर एम्प्लॉइज, टू एवरीवेयर आउटसाइड। बट प्रैक्टिस ग्राउंड इज एट होम, एंड दैट्स दे आर द पीपल हु नीड इट द मोस्ट। सिर्फ सुनो, और तुम देखोगे तुम्हें खुद एहसास होना चालू हो जाएगा, अरे मैं तो पहले ही कंक्लूजन में पहुंच गया हूं, मैं तो एडवाइस के उसमें आ गया हूं। तो आपसे कोई जब बात कर रहा है, तो आपसे एडवाइस, हमेशा एडवाइस मांगने के लिए बात नहीं करता है। वो कहता है कि सुनो यार, जस्ट किसको सुनाऊं मैं, मेरी हवा किधर है? तो कोई तो ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी ऑक्सीजन बन जाए, जो सिर्फ मुझे सुने, सिर्फ सुने। तो ऐसे कोई दोस्त है ना जो आपको सिर्फ सुनता है,
तो इससे बढ़िया वरदान नहीं हो सकता है. नथिंग कुड बी अ बेटर ब्लेसिंग देन दिस. अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको सुनता है, नथिंग कुड बी बेटर देन दिस. अगर आपके पेरेंट्स आपको सुनते हैं, नथिंग कुड बी बेटर देन दिस. आपने करियर के साथ रिश्ते भी बना दिए. अरे राजा, बिना रिश्ते के करियर होता है कोई क्या? मैंने लाइफ में कोई ऐसा करियर पाथ नहीं चुना जिसपे रिश्ते नहीं बनाए. मेरी लाइफ में पिछले 25 साल में जो भी मेरे लाइफ में आया, चाहे वो मेरा कस्टमर बन के आया, चाहे वो मेरा टीम मेंबर बन के आया, चाहे मेरा वेंडर बन के आया, मैंने सबके साथ रिश्ता बनाया. एंड दैट्स माय स्ट्रेंथ. दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग. सो डोंट सेग्रीगेट करियर एंड रिलेशनशिप्स डिफरेंटली. प्रॉब्लम यही है, हम धंधे को बिजनेस के रूप में देखते हैं, और इसलिए उस बिजनेस से हम उसको एक अलग ही रूप से होता है. एनीवे, सब्जेक्ट इज डिफरेंट. आई डोंट वांट टू डाइल्यूट दिस सब्जेक्ट. सो make a great week, all of you. And I want you to get back to me next week with some responses. Hmm? And I'm sure we'll meet. जो लोग मुझे physically नहीं मिले, we should meet someday. Let's see when we can meet. कभी कोई प्रोग्राम हुआ तो मैं आपको मिलूंगा, कभी कहीं हुआ किसी शहर से गुजरा तो मिलूंगा. But till the time, take charge and make the most of this life which you have got, and start listening in communication and start communicating in relationships. Start listening in communication and start communicating in relationships. That's the way, because for any relationship, the basis is communication. For any communication, the basis is listening. That's how it flows. So all the best, and मेरा कहना उतना ही काम आएगा जितना आप implement करो. बाकी तो सब time pass है. So God bless, and एहसास